Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class first year. I welcome you all in these video classes. Dear students, let me tell you that we have started these video classes in order to facilitate you people. My dear students, we have got 3 books in your syllabus of class first year English that include prose, poetry and drama portion. There are 14 lessons are of prose, 11 poems and 2 dramas, 2 one-act plays. One is Count's Revenge and other is Progress. Today we are going to start poetry section of your English syllabus, in which the first poem is of a great writer William Shakespeare's poem Under the Greenwood Tree. Basically it is a song which is taken from the comedy of William Shakespeare, As You Like It. Before starting the poem, let me tell you something about the writer. Let me give you a brief introduction to the poet William Shakespeare. William Shakespeare was born at Stratford-on-Avon on 26th April 1564. William Shakespeare, the greatest writer of the Elizabethan age. Why do we call it Elizabethan age? Because it is named after the Queen Elizabeth. This age is also called Age of Shakespeare because William Shakespeare was the prominent and dominant literary figure of this age. He was born at Stratford-on-Avon on 26th April 1564. Stratford-on-Avon is a town in England which was the birthplace of the greatest writer William Shakespeare. He was an English playwright. William Shakespeare was known as playwright, means dramatist, जिसको हम कहते हैं ड्रामा नवीस, एक ऐसा बंदा जो ड्रामाज लिखे. He was a famous English playwright. अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक मशहूर ड्रामा नवीस था. Not only he was a playwright but he was also a poet and actor. एक शायर भी था and actor भी था because he used to work in different dramas himself. Widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. As I already told you, William Shakespeare is considered as the greatest English language writer and dramatist. He is also called England's national poet. इंग्लैंड का कौमी शायर भी विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है. एंड द बार्ड ऑफ एवन. बार्ड मीन्स पोएट और एवन का शायर भी उसे कहा जाता है. एवन, एज यू नो, दैट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर. तो जहाँ उसने जन्म लिया था वहाँ का उसे शायर भी कहा जाता है कि ही वॉज द बार्ड ऑफ एवन. एवन का शायर था. William Shakespeare wrote 154 sonnets. Now sonnets basically is a genre of poetry. एक सिन्फ है शायरी की sonnet which is consist on 14 lines. मतलब एक ऐसी poem, एक ऐसी नज़्म जो 14 लाइनों पर मुश्तमिल हो उसको हम sonnet कहते हैं. And William Shakespeare wrote 154 sonnets, which is really a great achievement of a great writer. And he wrote 37 plays, means dramas, और 37 dramas विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे, which include many tragedies, comedy plays and history plays. Tragedy play basically is a play which has got a sad ending. मतलब tragedy basically आपको पता है कि दुख को, गम को हम कहते हैं. मतलब ऐसे किस्म का एक प्ले, एक ड्रामा जिसका इख्तिताम जो हो वो रंजो गम पे, दुख पर हो, मतलब बहुत ही गमगीन एंडिंग हो उसकी. दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेजेडी प्ले.
and Hamlet is a famous tragedy of William Shakespeare, and comedy basically a kind of play which has happy ending. कॉमेडी मतलब जिसमें तंज़ो मज़ा होता है, मज़ा उसमें होता है, तो वो एक ऐसे किस्म का प्ले होता है जिसकी जो एंडिंग है, जो इख्तिताम होता है, वो खुशियों वाला इख्तिताम होता है. एंड टुडेज़ टॉपिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, दैट इज़ अ सॉन्ग विच इज़ टेकन फ्राम द कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. दैट कॉमेडी इज़ एज यू लाइक इट. William Shakespeare died on 23rd April 1616. Now, let me give you an introduction about the poem. जो खुलासा है, जो सबस्टेंस है इस पोम का, वो एक इंट्रोडक्शन में आपको बता दूँ. अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ग्रीनवुड ट्री बेसिकली इज़ अ लिटरेरी वर्ड हेयर. इट मीन्स ग्रीन वुडलैंड, मतलब जो जंगलात से भरी, दरख्तों से भरी कोई ज़मीन होती है, जंगल होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रीन वुड. अंडर द ग्रीन वुड ट्री. दिस पोम अंडर द ग्रीन वुड ट्री, विच इज़ द टाइटल ऑफ अ सॉन्ग टेकन फ्राम द प्ले एज यू लाइक इट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. अंडर द ग्रीन वुड ट्री टाइटल है एक सॉन्ग का, एक गीत का, विच इज़ टेकन फ्राम द प्ले, जो लिया गया है एक ड्रामा से, एज यू लाइक इट, विच इज़ अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी एज यू लाइक इट. एंड दिस सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ टेकन फ्राम दैट कॉमेडी. उस कॉमेडी से ये जो गीत है वो लिया गया है. Actually, the play tells the story of two brothers, the elder Duke and the younger brother Duke Frederick. ये जो ड्रामा है, इसमें हमें पता चलता है दो भाइयों की कहानी है. The elder Duke, Duke means prince, नवाब. Duke word is basically used in English language. In French, this word is used as count. फ्रांसीसी ज़बान में इसको काउंट, नवाब को कहते हैं. ड्यूक भी नवाब होता है, बट इट इज़ प्योर एन इंग्लिश वर्ड, अंग्रेज़ी ज़ुबान का वर्ड है जिसको हम ड्यूक कहते हैं. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स. द एल्डर ड्यूक, जो बड़ा भाई था ड्यूक था, एंड द यंगर ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक, और जो उसका छोटा भाई था नवाब था, जिसका नाम था फ्रेडरिक. द यंगर ब्रदर इज़ वेरी ग्रीडी, सेल्फिश एंड एम्बिशियस एंड विशेस टू टेक ओवर द ड्यूकडम. जो छोटा भाई था, ही वॉज वेरी ग्रीडी, एक लालची किस्म का बंदा था, सेल्फिश था, ही वॉज अ मीन, एक मफाद परस्त, खुदगर्ज बंदा था, हु ऑलवेज थाट अबाउट हिमसेल्फ, मतलब ही डिडेंट केयर अबाउट द फीलिंग्स एंड पैशंस ऑफ द अदर पीपल. ही ऑलवेज थाट अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. किसी और के बारे में नहीं सोचता था, हमेशा अपने मफादों के बारे में, अपने मफादात के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में वो हमेशा सोचता था. बिकॉज ही वॉज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड एम्बिशियस एंड विशेस टू टेक ओवर द ड्यूकडम. और वो बहुत ही बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखता था. ही हैड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू टेक ओवर द ड्यूकडम. वो जो नवाबी रियासत थी, वो उस पर कब्ज़ा करना चाहता था, जो बेसिकली दैट वाज अ बेसिक राइट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर. बट एज द यंगर ब्रदर वाज ग्रीडी, सेल्फिश एंड एम्बिशियस, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू टेक ओवर द ड्यूकडम फ्राम हिज एल्डर ब्रदर. मतलब वो जो नवाबी रियासत थी, उस पर वो कब्ज़ा करना चाहता था. देन व्हाट हैपेंड, ही फोर्सेस द एल्डर ड्यूक टू गो इनटू एग्जाइल एंड पास द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. देन क्या होता है, वो अपने बड़े भाई को फोर्स करता है, मतलब ज़बरदस्ती उसको कहता है कि टू गो इनटू एग्जाइल, मतलब जला वतन हो जाओ, मतलब ये जो रियासत है इसको छोड़ के तुम चले जाओ. लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स हेयर, एग्जाइल एंड बैनिश. दोनों का जो मतलब है वो होता है जला वतन होना, मतलब टू लीव द नेटिव प्लेस, अपनी जो आबा व अजदाद की जो ज़मीन हो, जो अपनी जगह हो जहाँ हम रहते हों, उसको छोड़ देना. एग्जाइल में ये होता है कि यू आर फोर्सबली आस्क्ड टू लीव दैट प्लेस,
मतलब जब आपको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये जगह आप छोड़ दें तो उसको हम कहते हैं एग्ज़ाइल. बट इफ़ यू लीव दैट प्लेस अकॉर्डिंग टू योर ओन विश देन दिस इज़ कॉल्ड बैनिश. उसको भी हम जलावतनी कहते हैं. लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई जगह छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैनिश. बट वाट हैपन्स हियर, द यंगर ब्रदर फोर्सेस द एल्डर ड्यूक टू गो इनटू एग्ज़ाइल. उसको वो ज़बरदस्ती कहता है, ज़बरदस्ती उस अपने इलाके से, रियासत से उसको निकालता है. एंड आस्क्ड हिम टू पास द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. और उसको कहता है कि जो बकाया तुम्हारी ज़िंदगी है वो आर्डन के जंगलात में जाके तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो. The elder duke is accompanied by some of his devoted companions and followers. Now the elder duke, जो बड़ा भाई था, बड़ा नवाब था, he was accompanied by some of his devoted companions. उसके जो वफ़ादार साथी थे वो भी उसके साथ वहाँ गए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. जो आर्डन का जंगल था वहाँ वो उनके साथ गया. अपने जो वफ़ादार उसके साथी थे, दोस्त थे, उनके साथ गया. एंड फॉलोअर्स जो उसके अकीदतमंद थे वो उनके साथ वहाँ आर्डन के जंगलात में गया. अमंग देम इज़ लॉर्ड एमियंस. अमंग द कंपेनियंस एंड फॉलोअर्स ऑफ द एल्डर ड्यूक वाज लॉर्ड एमियंस. लॉर्ड एमियंस बेसिकली इट वाज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स. एक सिंगर्स का ग्रुप था, एक सिंगर था जो अपने ग्रुप को लीड कर रहा था, वो भी उनके साथ वहाँ उसमें शामिल था. Who is gifted with a very sweet melodious voice. जिसको अल्लाह ताला की तरफ से ये एजाज़ मिला हुआ था. He was a very melodious singer. सुरीली आवाज़ का मालिक था, बहुत ही खूबसूरत सुरीले वो गीत गाता था. In this song he describes the pleasant and carefree life of the forest. In this song under the greenwood tree, जो हमें पता चलता है कि इट डिस्क्राइब्स द प्लेजेंट एंड केयर फ्री लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट. इसमें हमें पता चलता है, ये चीज़ बयान की गई है कि द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट इज़ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, द प्लेजेंट, द चार्मिंग लाइफ. जो जंगलात की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी है, आज़ाद ज़िंदगी है, खुशगवार ज़िंदगी है. देयर इज़न्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द कोर्ट लाइफ. जो शहर की दरबारी ज़िंदगी है, ऐसे किस्म का कोई भी प्रॉब्लम वहाँ नहीं है. ही आल्सो एक्सटेंड्स एन ओपन इन्विटेशन टू एनी वन हु विशेस टू जॉइन हिम इन दैट चेयरफुल सराउंडिंग. द group of singer also invites many other peoples to join them, whoever wants to join them in their cheerful surrounding. मतलब वो जो जंगलात की पुरसुकून खुशगवार ज़िंदगी है वहाँ वो दूसरे लोगों को भी आने के लिए कह रहे हैं कि आप आएँ और हमें ज्वाइन करें और एक पुरमसरत और ख़ुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारें. Now he is inviting such kind of people. Such a person should be free from all worldly wishes and should feel happy and satisfied to live in the open natural environment. This is an important thing here. Such kind of people are invited there, those who do not have worldly wishes. Or such people should feel happy and satisfied to live in the open natural environment. वो खुली फ़िज़ा वाला माहौल है, बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट है, वहाँ आज़ाद माहौल लगा पड़ा है. वो ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जिनके पास दुनियावी ख्वाहिशें नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशें ना हों ज़िंदगी को गुजारने के लिए कि आई शुड हैव दैट, मेरे पास ये भी चीज़ होनी चाहिए, वो भी चीज़ होनी चाहिए. तो सच काइंड ऑफ पीपल कैन नॉट सस्टेन देयर. ऐसे लोग जो हैं वो वहाँ नहीं रह सकते. ऐसे लोग वहाँ रह सकते हैं जिनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना हों. अगर ख्वाहिशें होंगी then they will be unable to lead their life in charming environment of the forest of Arden. Now he also warns people that if you really want to join them, join us,
then you have to face some kind of problems also there. The only problem one has to face there is the harsh, unbearable winter weather. Now he is asking the people, the singer is asking the people that you have to face there a problem of harsh, unbearable winter weather. और जो सर्दियों की सख्त जो मौसम है उसको आपको वहाँ फेस करना है, उसका आपको सामना करना है, which you have to tolerate and bear there. So if you really want to lead a charming, a happy life in the forest of Arden, then come and join us, but you have to be ready to face the problem of winter weather there. Now dear students, I have also prepared the difficult words which are used in the poem, in the song Under the Greenwood Tree. It is done only for your ease and for your proper understanding. Greenwood means woodland, जंगलात से भरी ज़मीन. Lie, join, शामिल होना. Merry note means songs of happiness, खुशी के गीत. Hither, it is an archaic word used in English which means here. एक पुराना old word है अंग्रेज़ी ज़ुबान का hither, which is used in poetry mostly. इसका मतलब है here, यहाँ. Ambition, strong desire, कोई बड़ी ख्वाहिश किसी के पास होना. Shun, avoid, ignore, गुरेज करना, बचना, कोई चीज़ ख़त्म करना, उसे गुरेज करना, अपने आप को दूर रखना उससे. Seek, to find, तलाश करना. Now let us read the stanzas of the poem and explain them. Under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. In these lines, the singer is giving an open invitation to anyone who wishes to join him in the forest of Arden. The Lord Ambience, the singer is giving an open invitation. एक open invitation दे रहा है लोगों को, whoever wants to join him in the forest of Arden. मतलब वो एक ओपन इनविटेशन लोगों को दे रहा है कि भाई जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी भी ख्वाहिश है हमारे साथ चलने की, एक आज़ाद और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने की, तो दिल से ऐसे लोगों को दावत है और वो आ जाएं और हमें ज्वाइन करें. The singer desires the newcomer to rest under the shady trees and sing a song in such a manner that his voice mingles with the sweet notes of the birds to produce one single harmony. The singer desires the newcomer, the newcomer who wants to join them to rest under the shady trees. वो जो सायेदार दरख्त हैं उनको दावत दे रहा है कि भाई आप आएँ और सायेदार दरख्तों के नीचे आके आप आराम करें. And sing a song in such a manner that his voice mingles with the sweet notes of the bird to produce one single harmony. Now, sweet songs are sung by the birds. The melodious songs are sung by the birds in the beautiful forest of Arden. वहाँ जो परिंदे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और सुरीले गीत गा रहे हैं. Now, what does the singer ask them to do? कि the people who want to come and want to join them, they must sing the beautiful songs, the melodious songs, like the beautiful songs of the birds. जैसे खूबसूरत और सुरीले गीत वो परिंदे गा रहे हैं, ऐसे ही वो खूबसूरत और सुरीले गीत आकर गाएं. It means it shows the symbol of happiness, the sign of the happiness, कि वो खुशी का इजहार करें. They express that we are happy, we are not unhappy here. खुशी के गीत, वो खुशियों भरे गीत वो परिंदों के साथ गाएं और अपनी खुशी का इजहार करें कि we are leading really a happy life here. The singer reminds that the life of the forest is free from all enmity. मतलब ये भी लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है सिंगर के ये जो जंगल की
ज़िंदगी है, कंट्री लाइफ की ज़िंदगी है, बिल्कुल दुश्मनियों से आज़ाद है, प्रॉब्लम से बिल्कुल ये आज़ाद ज़िंदगी है। एनमिटी मीन्स एनोमोसिटी, दुश्मनी। द ओनली प्रॉब्लम इन the life of the forest is the unpleasant and unbearable winter wind. Now he also warns them that you have to face one problem here, that is of unpleasant and unbearable winter wind. वो जो सर्दियों की बहुत ही सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त जो हवा है, ठंडी ठंडी हवा है, वहाँ वो आपको आके फेस करनी है। If one is brave and willing enough to endure the harshness of the weather, the life of the forest is almost an ideal one. एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल ये चाहता है कि I can bear these harshness of the winter weather, मैं इनको बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं इनको फेस कर सकता हूँ, then believe him, the life of the forest is almost an ideal one. एक बहुत ही आइडियल ज़िंदगी है फॉरेस्ट की, कि अगर एक बंदा चाहे कि भाई I can face the problem of winter weather because that is the only problem here. और कोई मसला वहाँ किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही ये विंटर विंड का प्रॉब्लम है, सख्त विंड का प्रॉब्लम है, जो अगर इसको फेस कर सकता है तो वो आए और आके ज्वाइन करे एंड लीड अ हैप्पी एंड साउंड लाइफ देयर. Dear students, let me also explain the stanza in Urdu for you. Under the greenwood tree who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. Under the greenwood tree मतलब उन दरख्तों के नीचे आप आएँ, who loves to lie with me, ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है, शामिल होने के लिए दावत दे रहा है कि आप आ जाएं, हमें ज्वाइन करें इन दरख्तों के नीचे जो सायेदार शेडी ट्रीज़ हैं, सायेदार दरख्त हैं, उनके नीचे आप आकर हमारे साथ शामिल हो जाएं, हमारे साथ आके ज़िंदगी गुजारें. एंड टर्न हिज मेरी नोट, मेरी नोट मीन सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, मतलब वो लोग आएँ और ख़ुशियों भरे गीत गाएँ, लाइक the songs of the birds unto the sweet bird's throat, जो परिंदे हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, वहाँ खूबसूरत खुशियों भरे गीत वहाँ गा रहे हैं, उनके गीतों के साथ अपने गीत आके शामिल कर दें. एंड द पीपल हु वांट टू जॉइन देम एंड कम एंड एन्जॉय द मेलोडियस एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स देयर बाय सिंगिंग देमसेल्व्स, खुद आकर वो खुशियों भरे गीत आके वहाँ गाएं, जैसे परिंदे वो खूबसूरत और सुरीले गीत गा रहे हैं. कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं. हेयर शैल ही सी नो एनमी, आपको कोई भी यहाँ दुश्मन नहीं मिलेगा. देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज़ रफ़ वेदर ऑफ विंटर, बट विंटर एंड रफ़ वेदर, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है वहाँ, मसला है वो जो है खुश्क मौसम का है, सर्दियों के मौसम का है. The second stanza is, who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. Explanation. In the lines given for contextual explanation, the singer is laying down certain conditions to be fulfilled by one who wishes to come and pass his life in the forest of Arden. अब इस स्टेंजा में जो सिंगर है लॉर्ड एमियन है, वो उन लोगों को मुख्तलिफ़ शर्तें भी बता रहा है, मुख्तलिफ़ कंडीशंस भी बता रहा है कि जो लोग यहाँ ख्वाहिश रखते हैं हमारे साथ आके ज़िंदगी गुजारने की आर्डन के जंगल में, तो व्हाट आर द कंडीशंस? इन द फर्स्ट प्लेस सच अ पर्सन शुड हैव नो वर्ल्डली विशेस, मतलब ऐसे लोग वहाँ आएँ, हमें ज्वाइन करें जिनके पास ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, दुनियावी ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बिकॉज़ अगर उनके पास इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं होंगी, देन दे कैन
lead their life there, otherwise they cannot think to lead their life in the forest of Arden if they have a lot of wishes in their life. So ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशें ना हों. He should not be materialistic in his approach and should never run after fame, wealth, power and glory. Now that kind of person should not be a materialistic person. Materialistic हम कहते हैं मफाद परस्त को. A mean, a person who only thinks about himself, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, जिसको हम कहते हैं कि self centered, अपनी ज़ात तक वो बंदा महदूद हो. A person who does not think about the lives of the other people. A person who does not think about the welfare and betterment of the other people. मतलब ऐसा बंदा हमें आकर ज्वाइन करे जो मफाद परस्त ना हो इन हिज अप्रोच एंड शुड नेवर रन आफ्टर फेम, वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी. और जो पैसे के पीछे ना हो, नाम के पीछे ना हो, शोहरत के पीछे ना हो कि भाई मेरा एक अलहदा एक रुतबा, एक हैसियत मेरी होनी चाहिए. सो ऐसा बंदा नहीं हो जो हमें ज्वाइन करे. He should be willing to pass his life in the open atmosphere under the bright sun. The third, what is the third condition? के he should be willing to pass his life in the open atmosphere under the bright sun. मतलब ऐसा बंदा आके हमें ज्वाइन करे जो उस जंगल की जो आज़ाद फ़िज़ा है, आज़ाद ज़िंदगी है, जहाँ बिल्कुल सूरज की रोशनी आ रही है, आज़ाद ज़िंदगी है, सूरज की रोशनी आ रही है, ओपन एटमॉस्फेयर है, इजी माहौल है, वो वहाँ आके हमारे साथ ज़िंदगी गुजारें. He should look for his own food and should be satisfied with whatever he gets to eat. Now he has to arrange his food himself. मतलब उसे अपने खाने का जो बंदोबस्त है, इंतज़ाम वो ख़ुद ही करना है. And whatever he gets for eating he should be satisfied with that. और जो कुछ भी उसे खाने को मिले वो उससे बिल्कुल मुतमईन हो, कोई शिकवा शिकायत उसे ना हो कि I do not have many dishes to eat here. तो अगर ऐसा बंदा होगा जो चाहे कि भाई मुझे खाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाएँ, तो such kind of person cannot live his life there. मतलब only that person can lead a satisfied life there. A person who finds his food himself and whatever he gets he should be satisfied with that food. मतलब जो कुछ भी खाने को उसे मिले तो वो उसके साथ खुश हो और बिल्कुल इत्मीनान हो उसको और पुरइत्मीनान ज़िंदगी उसके साथ गुजारे जो कुछ भी उसे खाने को वहाँ मिले. The singer reiterates that the life of the forest is free from all anxieties, problems and difficulties except the unpleasantness of the chilly winter weather. Now the meaning of word reiterates means repeats. Singer बार बार इस चीज़ को repeat कर रहा है that the life of the forest is free from all anxieties. जो फॉरेस्ट की, जंगल की जो ज़िंदगी है, कंट्री लाइफ की जो ज़िंदगी है, वो बिल्कुल परेशानियों से आज़ाद ज़िंदगी है. You do not have any kind of problem and difficulty there except the unpleasantness of the chilly winter weather. You have to face only one problem there which is the unpleasantness of chilly winter weather. जो सर्दियों का जो खुश्क, सर्दियों भरा जो मौसम है, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है वहाँ जिसको आपको फेस करना है. अदरवाइज यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर. अगेन लेट मी आल्सो एक्सप्लेन द स्टेंजा फॉर यू इन उर्दू माय डियर स्टूडेंट्स. हु डथ एम्बिशन शन, मतलब जिसके पास बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना हों, ख्वाहिशों से आज़ाद ज़िंदगी हो. एंड लव्स टू लिव इन द सन, वो ओपन इन्वायरमेंट में एक ब्राइट लाइट जो सन की है उसके नीचे वो ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहे. सीकिंग द फूड ही ईट्स, और जो कुछ भी उसे एंड प्लीज्ड विथ वाट ही गेट्स, और उसको अपने खाने का बंदोबस्त ही खुद ही करना है. और जो कुछ भी उसे खाने के लिए मिल रहा है वो उसके साथ
खुश हो, मतलब इत्मीनान हो, वो उससे बहुत ही खुश हो कि जो कुछ भी उसको खाने के लिए मिले वो खुश हो जाए, उसके साथ किसी किस्म की कोई शिकायत ना करे। कम इधर कम इधर कम इधर, यहाँ आ जाएँ यहाँ आ जाएँ यहाँ आ जाएँ। हेयर शैल ही सी नो एनमी, यू विल नॉट फाइंड एनी एनमी देयर। कोई भी दुश्मन आपको वहाँ नहीं मिलेगा, कोई भी आपका दुश्मन वहाँ नहीं होगा। बट विंटर एंड रफ़ वेदर, सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो है खुश्क सर्दी का, और जो ख़राब मौसम है वो प्रॉब्लम है आपके पास। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? जो मरकज़ी ख़याल है, जो थीम है, मैसेज है इस पोम का, वो ये है कि लॉर्ड एमियंस द सिंगर praises the joy, freedom and simplicity of the forest life as compared to that of artificial court life full of conspiracies. लॉर्ड एमियन, वो जो सिंगर, किस चीज़ की तारीफ़ कर रहा है कि जो फॉरेस्ट की ज़िंदगी है, जंगल की, देहात की जो ज़िंदगी है वो खुशियों भरी ज़िंदगी है, आज़ादी वाली ज़िंदगी है, सादा ज़िंदगी है। मतलब बरक्स उसके जो शहर की ज़िंदगी है, दरबारी ज़िंदगी है, मसनूआती ज़िंदगी है, वो उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी है फॉरेस्ट की। बिकॉज द कोर्ट लाइफ, द सिटी लाइफ इज़ फुल ऑफ कंस्पायरेसी, वो मतलब साजिशों से भरी हुई ज़िंदगी है। द सिंगर सेज दैट द वुंड्स गिवन बाय ग्रीड एंड जेलसी आर डीपर दैन द वुंड्स गिवन बाय कोल्ड एंड रफ़ वेदर। मतलब जो ज़ख़म हमें साजिशों से और लालचों की वजह से, हसद की वजह से मिल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गहरे ज़ख़म हैं ठंड से, और जो खुश्क मौसम है, ख़राब मौसम है। मतलब वी कैन फेस कोल्ड एंड रफ़ वेदर, बट हाउ वी कैन फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीड एंड जेलसी which are given to us by the people, the materialistic kind of people, जो मफाद परस्त लोग हैं, जो हमें वो घाव दे रहे हैं, ज़ख़म दे रहे हैं, किस चीज़ के, हमारे साथ हसद कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि वो फॉरेस्ट की लाइफ अच्छी है, जहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो ठंड का प्रॉब्लम है, खुश्क मौसम का प्रॉब्लम है। बट दैट लाइफ इज़ रियली full of joy, freedom and simplicity. I hope, my dear students, you got each and every point of the poem Under the Greenwood Tree. Thank you so much.